How are you, my dear children? I hope all of you are keeping safe and fine. I hope you all have solved all the question answers that has been given to you till now. We have done first chapter, that is the boy with a catapult. Yeah, I hope you have solved the question answers. Now that all of you, I think, might have got the books, and some of you, if you have not got them, if you have not purchased them, go and buy from school. They are still available in the school, and you know that, okay? Because if you will not buy the books, from now onwards we will not be sending the PDF of the chapters, okay? So it will be difficult for you to continue with your studies, because until and unless you have the book with you, until and unless you have the material with you, you will not understand anything, okay? So get your books from the school. And till now we were discussing, we have done boy with a catapult, thereafter turning point. I hope you have written the question answers and you are learning also. Then we have written the summary, okay, of that problem solving, okay, poem. In that I have made a minor mistake, okay, which I will tell you afterwards. But if you can follow in my video, I am telling you now only that in the third para of the summary, see, in the third para of the summary, I am reading the full third para. In the second stanza, Jack is presented as a lazy boy, as he says he had nothing to show because he did the sum mentally. Miss Clark advises her, this I have written mistake, okay, this is the minor mistake done by me, sorry for that, please erase it, okay. You can don't use whitener over there, just give a minor cut, or if you can erase it with a pen eraser, if you have the pen eraser, you just manage with you can easily make E-I, okay, H-I-M, him. Miss Clark advises him, okay, here it will be him. Miss Clark advises him to use the abacus next time. I hope you have followed, okay. Now we will do the question answers. Let us move to the question answers, okay. Some of you have complained in the some of you have commented in the comment box that we are unable to open the PDF. So for you, for all those students who are unable to open the PDF, I do not know why you are unable to open the PDF, because it is very easy. Still maybe there are some network issues in your area due to which you are unable to open it. For all those students, I am making the video of the question answers also, okay. So from here, from the video itself, you can take screenshots, and from the screenshots you can write, okay, the question answers. Here see, the first part is read to understand. First you will follow the same pattern. In the first line you will write poem, then in the third line problem solving, thereafter leave a line and write the name of the poet, then leave 3 more lines and write read to understand, leave 1 line and write match the lines from the poem with their meanings. As I have told you, use blue and black pen for writing.
for writing questions you need to use black, and for writing your answers use blue. Okay. So match the lines. I have straight away written the answers as it will be. You will not match in zigzag pattern, in zigzag manner, just as you do it in exam, side by side you will match. I did it in my head means I solved the sum mentally. The answer is nothing like it. It is not the correct answer. Then come here and copy me. Let me solve the sum for you. I think I have found the trouble. I have found my mistake. Okay. Now here you will draw a margin. Okay. After doing this question, draw the margin. Now leave one line and write answer these questions with reference to the context. I have nothing here to show you, miss. I did it in my head. What did the teacher ask Jack to show? टीचर ने जैक को क्या दिखाने को कहा? क्या दिखाने को कहा था? नोटबुक दिखाने को कहा था, है ना, जिसमें उसने सम सॉल्व किया है. Why did he have nothing to show to his teacher? उसके पास टीचर को दिखाने के लिए कुछ क्यों नहीं था? उसने इसलिए टीचर को कुछ नहीं दिखाया. उसके पास इसलिए कुछ नहीं था दिखाने को क्योंकि उसने वो सब मेंटली किया था. उसने वो सब अपने दिमाग में मेंटली किया था, यानी उसने कोई नोटबुक में सॉल्व नहीं किया था. हाउ डिड द टीचर आस्क जैक टू सॉल्व द सम? टीचर ने कैसे बोला जैक को सॉल्व करने के लिए? टीचर ने कहा कि एबाकस यूज़ करो, है ना, मेंटली करने के बजाय एबाकस यूज़ करो. अब डिस्कस. Okay, see, you have very small answers, very short answers. Okay, so you can easily learn from here. I have given you short answers because all of you always complain to me, miss, the answers are very big like an essay. So I have made short answers for you, and वैसे भी poem के answers थोड़े short होते हैं. ठीक है. So it's not necessary to write unnecessarily lengthy. अब ये थोड़ा सा डिस्कस का जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. Why do you think Jack would not use the abacus? Circle the words that you would use to describe him. Also give reasons for your choice of words. तो कुछ words दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि जैक इनमें से क्या आपको लगता है. क्लेवर, कॉन्फिडेंट, कनिंग, लेजी, नर्वस, ओबीडियंट, स्किलफुल. तो वैसे तो जैक सब कुछ लगता है ना. उसमें सारे स्किल्स थे, सारे मतलब जो टैलेंट थे कूट के भरे हुए थे. वो क्लेवर भी था, कॉन्फिडेंट भी था, समटाइम्स कनिंग भी था, समटाइम्स लेजी, समटाइम्स नर्वस, है ना. नर्वस तो बिगनिंग में ही, क्योंकि वो फटाफट आंसर दिए जा रहा था, है ना. जबकि उसे इस बात की बिल्कुल ये नहीं थी कि आंसर्स उसके गलत भी हो सकते हैं. और ओबीडियंट इसलिए कि बाद में दिखाया गया है ना कि ओबीडियंट, थोड़ा सा ओबीडियंट भी था क्योंकि अपने मम्मी पापा को सारा कुछ बताता था, सब कुछ सारे बातें शेयर करता था. लेकिन हम लोग जो और स्किलफुल भी था, है ना, क्योंकि उसने टीचर को अपने बिहाफ में टीचर से काम करवा लिया, है ना. जो काम उसे करना चाहिए था वो उसने टीचर से करवा लिया. तो ये एक स्किलफुल होने का ही ये है. लेकिन हम लोग जो वर्ड्स हमको सबसे ज़्यादा सूट करते हैं वही यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है. जैक डिड नॉट यूज़ द एबाकस बिकॉज ही वॉज हेसिटेंट टू सॉल्व द सम. हेसिटेंट यानी उसे हिचकिचाहट थी. हाँ. एंड टेक द पेन ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस. उसे वो सम करने में हिचकिचाहट थी और उसे अपने आप को कष्ट देने में तकलीफ़ हो रही थी.
कि इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, यानी वो लेज़ी था, है ना। तो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हिम आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि उसे लगता था कि वो मेंटली सॉल्व कर सकता है। उसे लगता था अरे ये तो बाएं हाथ की खेल है, बाएं हाथ का खेल है मेरा, मैं तुरंत इसको सॉल्व कर लूँगा। कनिंग, कनिंग इसलिए क्योंकि उसने एबाकस यूज़ नहीं किया और रिपीटेडली रॉन्ग गेसेस देता था, है ना। कितना बार दिया उसने रॉन्ग गेस? 2 बार, है ना। एक बार क्या दिया था? एक बार शायद 41 और दूसरी बार शायद 53, है ना, जो कि दोनों ही गेस गलत थे। क्यों? और क्यों दिए थे? क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो रॉन्ग गेसेस देगा तो हार के टीचर उसकी हेल्प कर देगी, है ना। लेज़ी, डिस्पाइट रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस बाय हिज टीचर, उसको टीचर रिपीटेडली इंस्ट्रक्ट कर रही थी, बेटा एबाकस यूज़ करो, बेटा आओ मेरे पास, मैं सॉल्व कर देती हूँ, मेरे पास आओ मैं बताती हूँ, लेकिन वो मेंटली सॉल्व करने में लगा हुआ था, जो कि उसका लेजीनेस का प्रूफ था, उसके आलस का प्रूफ था। ठीक है, तो जैक्स पेरेंट्स न्यू दैट ही हैड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अ सम। व्हाई डू यू थिंक दे डिड नॉट सॉल्व द सम फॉर हिम? Despite knowing that Jack had a problem solving a sum, they did not help him because they wanted him to be self-dependent. उसको सेल्फ रिलायंट, मतलब वो खुद पे डिपेंड हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने आप पे भरोसा कर सके। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उसके पेरेंट्स भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर बने, है ना। उनको पता था कि उसे तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है सम, फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैक को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है ना। जैक रिपीटेडली डिड द सम इनकरेक्टली सो डैट द टीचर वर्कड इट आउट फॉर हिम। Do you think getting others to solve your problems is right? Give reasons for your answer. No, I don't think so. क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए? अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के पास ले जाना चाहिए और दूसरों की मदद लेनी चाहिए हमेशा ही, जब हमें कोई सम दिया जाए या फिर हम कोई प्रॉब्लम फेस करें। तो क्या आपको सही लगता है वो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, शायद आप लोगों को भी नहीं लगता होगा, क्योंकि हमेशा ही दूसरों की मदद लेना ठीक नहीं होती है। क्योंकि जो भी असाइनमेंट या जो भी प्रॉब्लम सम्स हमें दिए जाते हैं, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, हमारे टीचर देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि हमारा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो सके, ताकि हमें कितना समझ में आया है लेसन, वो टीचर जान सके कि हम और अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूँ, कुछ भी क्वेश्चन दूँ, तो आपको वो खुद से सॉल्व करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने दोस्तों से मदद ले लो या अपने पेरेंट्स से मदद ले लो या फिर अपने टीचर से मदद ले लो। क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आया है भी है कि नहीं, या मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत भी है कि नहीं। अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो अपने बच्चों को समझाया है, जो अपने विद्यार्थियों को समझाया है, जो अपने छात्रों को समझाया है, जो अपने स्टूडेंट्स को समझाया है, उन्हें समझ में अच्छी तरह से आ गया है। तो फिर मुझे आगे बढ़ना है, यानी लेसन आगे बढ़ाना है। या फिर आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है तो मुझे फिर से उसको रिवाइज करवाना है, फिर से उसे समझाना है, फिर से आपको प्रोसेस बताना है कि सही प्रोसेस क्या है ना। तो ये टीचर्स जो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी असाइनमेंट्स देते हैं तो हमारा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए देते हैं। और अगर हमें वो खुद से सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो
हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ डिपेंडेंस है, सेल्फ रिलायंस है, जो हम खुद पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं होगा, है ना। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, हमें ये विश्वास कभी नहीं होगा, हमें आत्मविश्वास की भावना कभी नहीं आएगी। हमें ये लगेगा कि हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम दूसरों से मदद लेंगे, हमेशा ही दूसरों से मदद लेते रहेंगे, तो हमें आत्मनिर्भरता की भावना और आत्मविश्वास की भावना कभी नहीं आएगी। हमें कभी ये यकीन नहीं आएगा कि हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं, है ना। So we have done all the question answers. Okay, I have discussed also all the question answers. I hope you have understood it well. Still, if you have any doubts or any queries, or in any words, if you have any problem, if you are facing any problem with any words, then please do comment in the comment box. Place your queries over there. और जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तो मैं आपके सारे डाउट्स आप इकट्ठे करके रखना, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन तब तक आप कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, मतलब जो भी आपको समरी दिया जाए या क्वेश्चन आंसर्स दिया जाए तो आप वो करते जाना। आपके कॉपीज़ कंप्लीट रखना, अपने नोटबुक्स कंप्लीट रखना और अपनी तैयारी भी जारी रखना, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन जारी रखना, पढ़ते रहना, लर्न करते रहना, ताकि आप हमेशा ही अप टू डेट रहो, कहीं आपको कोई दिक्कत ना रहे। जब भी स्कूल खुले या कभी भी स्कूल खुलने के बाद, मान लो जब कभी भी स्कूल खुले, और हो सकता है स्कूल खुलने के हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही एग्ज़ाम भी अगर हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो bye till our next video. Now we will move on to the next chapter, which is, I think, ultimate frisbee. Okay, first I'll give you the explanations of the chapter, and thereafter moving on to the next chapter, I will at the same time I will post you a PDF of the solved objectives. Okay, I will give you the objectives so that you can do it in books. Okay, so bye till our next video. Thank you. Keep safe and be secured at your home. Listen to your parents. Don't be naughty. And concentrate on your studies too. Okay, bye.